What distinction exists between data science, machine learning, deep learning and artificial intelligence? Like अगर किसी को प्रायर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है तो वो उसे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी कि वो इस डेटा साइंस सेक्टर में आ सके? हाउ कैन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री एक्सपीरियंस कॉम्प्लीमेंट इन डेटा साइंस करियर? सो एज यू मेंशन्ड सैलरी, तो सैलरी बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होंगे कि डेटा साइंस में आने के बाद क्या सैलरी रेंज है मार्केट में? Hello everyone, my name is Ahmed Zahid from Sambodhi Research and Communications and Education Nest. Today we will be having a discussion on career options available in data science for freshers and mid-career professionals. Here we are going to have a discussion on following things: technologies available in market, prerequisite to pursue a career in data science, salary range, and utilization of the existing experience in data science for mid-career professionals. We have Yatin Singh here. He is having 12 years of work experience in tech and non-tech trainings, career counseling for both fresher and experienced professionals. Today we aim to illuminate the opportunities, challenges and growth prospects in the data science field. So before we move to our question session, so I would request my viewers to do subscribe, like and share our videos. Why is data science an attractive career option for mid-career professionals? Actually, it depends on the demand. In current scenario, data science is the most demanded career option for the fresher and for experienced professional, that is mid career professional. कोई भी कर सकता है, and that depends. Every company is using like finance, aviation, healthcare. Every company is using data in these days. तो इसमें हो क्या रहा है, क्योंकि everyone is need data to forecast the future and do insights, data analysis, all these things. So they need data scientists, right? So this is why this is the most prominent career in this current scenario. So what skills should one focus on in order to enter the data science field? See, basic skill required to enter in data science field is mathematics. One should have the very good knowledge in mathematics. This is the basic requirement. A part of this mathematics, person should have knowledge of Python programming language, database, that is SQL database, right? And person should have good knowledge of stats. That is very necessary. A part of these basic things, few are some advanced things, that is machine learning, deep learning, artificial intelligence. ज़्यादा कुछ नहीं, पर बेसिक इनके बारे में पता होना चाहिए बिफोर एंटरिंग दिस डेटा साइंस, राइट? या What distinction exists between data science, machine learning, deep learning and artificial intelligence? तो ये सेपरेटेड हैं या कुछ इंटर रिलेशन है इन टेक्नोलॉजीज का आपस में? नाइस क्वेश्चन. एक्चुअली एवरीवन इज आस्किंग दीज क्वेश्चंस. फ्यू थिंक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही सारा कुछ है, लेकिन यस दीज टेक्नोलॉजी आर सिमिलर, बट यस देयर आर सम फ्यू मेजर डिफरेंस अमंग दीज टेक्नोलॉजीज. लाइक इन डेटा साइंस में क्या होता है, वी आर गेटिंग द डेटा, that may be the structured data or unstructured data. तो इस डेटा को यूटिलाइजेशन करके डेटा विजुलाइजेशन हम करते हैं, राइट? या फिर कुछ डेटा एनालिसिस आपको करना है, ठीक है, या फिर डेटा प्रेडिक्शन कुछ करना है, तो वी आर यूजिंग ऑल दीज थिंग्स इन डेटा साइंस ओनली, राइट? इन मशीन लर्निंग व्हाट वी डू, मशीन लर्निंग में क्या है कि वी आर इंटीग्रेटिंग दिस प्रोग्रामिंग एंड दीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विद पीसीबी. तो आपके पीसीबी बोर्ड्स होते हैं, लाइक वी आर ट्रेनिंग ऑन मशीन्स को डेटा ऑटोमेशन के लिए, लाइक आपने उनको कुछ टास्क का, एंड दे आर परफॉर्मिंग दिस डेज यू आर सीइंग माइक्रोवेव ओवन्स हैं, फ्रिज हैं, जिसमें आपको सेट कर देते हैं और फॉर पर्टिकुलर टाइम दे आर डूइंग ऑल दिस ऑटोमेशन काइंड ऑफ थिंग. फॉर एग्जांपल आपने उसमें कोई स्विच प्रेस किया कि, और जिसमें ऑलरेडी हमने प्रोग्रामिंग सेट की है कि दिस मच टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू कुक द पिज़्ज़ा, राइट? सो दीज आर द मशीन लर्निंग काइंड ऑफ थिंग. एंड इफ वी टॉक अबाउट डीप लर्निंग, दैट इज डीएल, इसमें क्या, वी आर डेवलपिंग ब्रेन इन अ मशीन, और उसमें टास्क ऑटोमेशन के लिए वी आर ट्रेनिंग द मशीन. तो इसका जो ब्रेन डेवलपमेंट का प्रोसेस है, न्यूरल नेटवर्क का प्रोसेस है, दैट कम्स अंडर दिस डीप लर्निंग. एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल. इसमें आपका डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इस सब के बाद जो प्रोडक्ट रेडी होता है, दैट इज वी कॉल, कुछ केसेस में हम इसे रोबोटिक्स भी कहते हैं, रोबोट्स भी कहते हैं, और इन दीज डेज वी आर यूजिंग अ प्रोडक्ट कॉल्ड ChatGPT, जो कम्प्लीटली AI बेस है आपका,
राइट। तो पूरे टास्क को ऑटोमेशन करने के बाद जो प्रोसेस है दैट इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें वो खुद से सोचने लगता है। आप क्वेश्चन करेंगे वो आंसर करेगा आपके क्वेश्चंस का, आप कोई भी एक्शन करेंगे वो रिएक्शन करेगा उसका, दैट इज एआई। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड फॉर द डेटा साइंस? लाइक अगर किसी को प्रायर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है तो वो उसे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी कि वो इस डेटा साइंस सेक्टर में आ सके? Okay. See, to enter in this data science sector, बेसिक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट इज़ वेरी नेसेसरी, दैट इज़ पाइथन। और पाइथन इसलिए नेसेसरी है, देयर आर फ्यू अदर लैंग्वेजेस विच ऑल्सो यूज इन दिस डेटा साइंस, पर पाइथन इज वेरी इजी बिकॉज इसमें सिंटैक्स यूज हुए हैं ना, पांडास, numpy एंड देयर आर फ्यू मोर सिंटैक्स, दैट इज़ वेरी इजी कि किसी को अगर सिंपल इंग्लिश आती है ही और शी कैन लर्न दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये कोडिंग से थोड़ा डिफरेंट होती है क्या? लाइक जैसे हम लोग जावा सी प्लस प्लस पढ़ते हैं। यस यस यस, दिस इज डिफरेंट। जो जावा है कहा जाता है दैट इज वन ऑफ द टफेस्ट लैंग्वेज, ठीक है, लेकिन पाइथन वन ऑफ द इजीएस्ट लैंग्वेज, इसको कर सकते हैं। लेकिन देयर आर फ्यू अदर ऑप्शंस ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं करना चाहता है तो डेटा साइंस में और भी सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइक आर है जो कि सिंपल इंग्लिश पर चलता है, ठीक है। उसके बाद आपका सेस है जो कि मोस्टली आपके फार्मा सेक्टर्स में यूज़ होता है, ठीक है, क्लिनिकल सेक्स नाम से भी प्रोडक्ट आता है। SPSS है आपका, स्टेटा है आपका, एंड मैनी मोर। ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनमें आना ज़रूरी नहीं है। आप डायरेक्टली अगर आपको सेक्टर की नॉलेज है यू कैन लर्न दिस सॉफ्टवेयर एंड इम्प्लीमेंट योर नॉलेज। लेकिन यस, दिस इज रिकमेंडेड कि पाइथन आना चाहिए अगर आपको इसमें आप एक लेंथी करियर प्लान कर रहे हैं। आप यू आर प्लानिंग कि अगर आपको बड़ी कंपनियों के साथ काम करना, अच्छी सैलरी अगर आप प्लान करें तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस पाइथन। Can you recommend like some platform from which one can learn this data science course for free? और डेफिनेटली आप हमारे संबोधि के जो एजुकेशन नेस्ट है, हमारा संबोधि इन एजुकेशन है, उसके यूट्यूब चैनल पर जाइए। वहाँ पर हमने अपना SPSS के कंप्लीट कोर्स मिलेंगे आपको, डेटा साइंस विद आर मिलेगा आपको, ठीक है, डेटा साइंस विद पाइथन मिलेगा। जो भी मैंने आपको यहाँ पर बताए वो सारे कोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे और कंप्लीट कोर्स हैं विद एग्जांपल ईच एंड एवरीथिंग। यू कैन ऑल्सो कमेंट एंड आस्क द क्वेश्चन, और जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आंसर भी देते हैं वहाँ पर। Which companies one can target or which industry one can target after completing the data science course? सी आंसर इज़ वेरी सिंपल, हर एक इंडस्ट्री से यूज़ कर रही है। आपकी एविएशन इंडस्ट्री है, आपकी ई-कॉमर्स है, FMCG है, IT कंपनीज हैं आपकी, ठीक है, कोई भी आप डोमेन उठा लीजिए। लेट मी शेयर सम एग्जांपल। इफ़ यू टॉक अबाउट IT, जिसमें में TCS है, गूगल है आपके, फेसबुक है, अमेजोन है आपके, किसी का भी नाम आप ले लीजिए, एवरीवन इज यूजिंग डेटा साइंस, राइट। इफ़ यू टॉक अबाउट ई-कॉमर्स तो मोस्ट वाइडली यू नो फ्लिपकार्ट है आपकी, अमेजोन है आपकी, जियो है आपकी, और भी जितनी जियो मार्ट वगैरह जो भी हैं, एवरीवन इज यूजिंग डेटा साइंस, ठीक है। और हेल्थ केयर में जितनी भी आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जैसे भारत बायोटेक है आपका, पेफिजायर है आपकी, जो भी कंपनी है, एवरीवन इज यूजिंग डेटा साइंस। तो अब इट्स नॉट लाइक कि आप किसी स्पेसिफिक डोमेन में जाएंगे, राइट। इट्स नॉट लाइक कि आपने कोई ऐसा कोर्स कर लिया जिससे आप जैसे आपने कोई एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग कर लिया तो आप केवल एविएशन सेक्टर में ही जा सकते हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इफ यू डिड दिस डेटा साइंस कोर्स यू कैन गो एवरीवेयर, every company, every organization, every domain is using this data science sector. How can existing industry experience complement in data science career? अगर किसी का कुछ भी एक्सपीरियंस, दैट इज फॉर एग्जांपल इज समवन फ्रॉम सेल्स बैकग्राउंड, राइट, इफ ही और शी फ्रॉम द सेल्स बैकग्राउंड, इन योर प्रीवियस क्वेश्चन यू वर आस्किंग अबाउट दिस कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको आनी चाहिए, या फिर किसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती तो वो कैसे डेटा साइंस करियर प्लान कर सकता है। तो वहाँ मैंने बताया था अगर किसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है तो देयर आर सम सॉफ्टवेयर, सेस, SPSS, राइट, देयर आर नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ऐसे ही यहाँ पर होता है। फॉर एग्जांपल जो अभी हम बात कर रहे थे, कोई से अगर सेल्स बैकग्राउंड से, नाउ दे ही और शी प्लानिंग टू मूव देयर करियर इन डेटा साइंस, सो दे कैन जॉइन ई-कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पर भी तो आपको मार्केटिंग करना है, प्रोडक्ट सेल करना है। नाउ दे कैन इंटीग्रेट देयर एक्सपीरियंस इन दिस एनी ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, जिसमें आप सेस हो गया, SPSS हो गया, आर हो गया आपका, ठीक है, इनके साथ अपना आप एक्सपीरियंस इंटीग्रेट करके आप प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, राइट। इफ़ यू आर फ्रॉम अ फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड, फार्मा बैकग्राउंड से है आपको, तो आपको जो सॉफ्टवेयर तो क्या है वो करता है जो आप बताते हो। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट AI,
वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा साइंस। तो डेटा साइंस में क्या है, ब्रेन आपका रहेगा, नॉलेज आपकी रहेगी, एक्सपीरियंस आपका रहेगा, वो करेगा जो आप कहेंगे, राइट। तो इसके लिए जो एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस जो भी है आपका, चाहे आप सेल्स से हैं, फार्मास्यूटिकल से हैं, आप मैनेजमेंट से हैं, आप एचआर बैकग्राउंड से हैं, किसी भी बैकग्राउंड जो आपका एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस है, आप उसको डेटा साइंस में इम्प्लीमेंट करके आप एप्लीकेशन प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। Do you prefer self-paced learning, online mode or offline mode for acquiring data science skills? एक्चुअली दैट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। लेट्स हैव सम एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, राइट, आपको कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, कुछ आपको पता भी नहीं है, आपके घर में कोई गाइड करने वाला भी नहीं है, देन आई विल सजेस्ट कि आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए जाइए, जहाँ पर क्या एक मेंटर रहेगा, ट्रेनर रहेगा आपके पास, जो आपको आपकी प्रेफरेंस और आपके क्या होता है ना, सबके समझने का तरीका भी अलग होता है। इफ़ आई से कि आप ऑनलाइन या सेल्फ प्ले चले जाते हो, आई डोंट नो कि आपका पढ़ने का तरीका कैसा है, आप कैसे समझते हैं, आपको एक ही बात बार बार बतानी पड़ती है। तो आई सजेस्ट इन सच केस गो फॉर दिस ऑफलाइन क्लासेस, राइट। सेल्फ प्लेस में क्या है, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपको सुबह से शाम तक ऑफिस जाना होता है, आपके पास टाइम नहीं है, देन आई सजेस्ट कि गो फॉर सेल्फ प्लेस क्लासेस। इन दोनों के मिड में आता है कि ऑनलाइन, राइट, कि आपके पास टाइम है भी और नहीं भी है, दूसरा है कि ट्रेनिंग सेंटर आपकी लोकेशन के नज़दीक नहीं है, और तीसरा कि कॉस्टिंग। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो इन ऑनलाइन क्लासेस यू विल गेट वीडियोस, दैट इज़ लाइव क्लासेस, उसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिलेंगे, असेसमेंट हैं, क्विजेज हैं, ये सभी आपको मिलेंगे, राइट। अ पार्ट ऑफ दैट कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। अगर ऑफलाइन में अगर आप डेटा साइंस का कोर्स करते हैं, दैट मे वेरी फ्रॉम मिनिमम 25,000 टू कोई कॉस्ट ही नहीं है, 2-2.5 लाख तक भी हो सकता है। वही कोर्स अगर आप ऑनलाइन में ज्वाइन करते हैं, तो ऑनलाइन में क्या होता है, वैरायटी ऑफ ऑडियंस होता है। आप दिल्ली से हैं, देर में भी पॉसिबिलिटी कोई मुंबई से हो, कोई अब्रॉड आउट ऑफ इंडिया से किसी और कंट्री से भी हो सकता है। तो वहाँ पर कोर्स जो आपको पड़ता है 10,000 15,000 ऐसा पड़ जाएगा आपको, और वही सारी ऑफलाइन क्लासेस वाली फैसिलिटी भी आपको उसमें आप अवेल कर सकते हैं। How can one stay updated on the latest advancement and the best practices in data science? Actually, in these days, this is very simple, right? अभी क्या है कि यू कैन ज्वाइन लिंक्डइन, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, पीपल आर टॉकिंग अबाउट डेटा साइंस, क्या नया चल रहा है, क्या नया आने वाला है, राइट। आप ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए, देयर आर सम मैगजीन्स, आप मैगजीन ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन कोर्सेज, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था प्रीवियसली, कोर्सेज डेटा साइंस, डीप लर्निंग, ये सभी कोर्सेज होते हैं। लेकिन अभी आपने सुना हो गूगल है रिसेंटली लॉन्च दिस जेमिनी, चैट जीपीटी हमारा ऑलरेडी था, तो इनके भी छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं। यू कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर, इधर आप यूट्यूब वगैरह से या फिर इनके कोर्सेज, सो दैट आपको क्या मार्केट में क्या चल रहा है, क्या आने वाला है, ये सब आपको पता लगेगा। वेबिनार्स होती हैं, हम काफ़ी सारी, आप लोग भी संबोधि एजुकेशन नेशनल वेबिनार कराते हैं, सेमिनार्स कराते हैं। कई सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जो अपने यहाँ पर वर्कशॉप कराते हैं। यू शुड ज्वाइन ऑल दीज थिंग्स टू स्टे अपडेटेड। क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे उन लोगों को जो कि ट्रांजिशन ले रहे हैं डेटा साइंस में फ्रॉम वेरी डिफरेंट फील्ड? Actually, I have two advice, one for fresher and one for एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, मिड करियर वाले जो होते हैं। फ्रेशर के लिए क्या है, एक्चुअली इट्स अ बूमिंग सेक्टर, सैलरी का कोई इशू नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ का कोई इशू नहीं है, जॉब्स का कोई इशू नहीं है, लेकिन पर्सन शुड बी, जो मैंने पहले बताया, गुड इन मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स, ये ज़रूरी है, दैट इज़ बेसिक प्रीरिक्विजिट। अगर बंदा स्टैट्स में अच्छा नहीं है, सांख्यिकी हिंदी में जिसे कहते हैं, अगर उसमें अच्छा नहीं है, तो आई विल सजेस्ट डू नॉट गो इन दिस डेटा साइंस सेक्टर। अगर अच्छा है, देन ही और शी कैन प्लान देयर करियर इन डेटा साइंस। So stats play a major role in Yes. entering into data science. एंड सेकेंड वन इज़ फॉर मिड करियर प्रोफेशनल। अगर आपको लगता है यू आर नॉट गुड इन मैथ्स, रीजनिंग आपका अच्छा नहीं है, लॉजिकल थिंकिंग इसमें अच्छी नहीं है, तो आई विल सजेस्ट कि डोंट चूज दिस डेटा साइंस सेक्टर। ऑलरेडी आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, वेल सेटल्ड हैं, लेकिन आई डेफिनेटली एनकरेज दोज पीपल हु इज़ गुड इन मैथमेटिक्स। अगर आपका अच्छा है और पहले आपको स्टार्टिंग में ये चांस नहीं मिला था, फैमिली प्रेशर की वजह से, किसी और वजह से, आपने कोई सेल्स या फिर कोई दूसरा सेक्टर चूज़ कर लिया उस टाइम पर अपनी स्टार्टिंग डेज में, नाउ आप सेटल हो चुके हैं, आपका पैशन था कि आप कुछ टेक्निकल करें, कुछ नया करें, तो नाउ यू कैन, दिस इज़ द टाइम, और दिस इज़ द टेक्नोलॉजी एंड दिस इज़ द कोर्स और ऑल दिस थिंग। डेटा साइंस जो सेक्टर है, इसमें आप वो सब कुछ कर सकते हैं।
तो उनके लिए आई सजेस्ट कि दे शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। सो एज यू मेंशन्ड सैलरी, तो सैलरी बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होंगे कि डेटा साइंस में आने के बाद क्या सैलरी उन्हें मिलेगी। तो लाइक एज अ फ्रेशर और कुछ एक्सपीरियंस जो है क्या, तो उन लोगों के लिए क्या सैलरी रेंज है मार्केट में? जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए जो सैलरी रेंज होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से जो डेटा साइंस है दैट इज़ वेरी दैट हैज़ वेरी गुड पेइंग कैपेसिटी। इट्स नॉट लाइक कुछ और सेक्टरों की तरह जहाँ पर आपको 10, 15, 20,000, 25,000 के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। दे आर हैविंग वेरी गुड पेइंग कैपेसिटी। तो जो स्टार्टिंग पैकेज होता है, जो मैं कहूँगा दैट में वेरी, लेकिन मिनिमम आपका 8-10 लाख से स्टार्टिंग होगा फॉर फ्रेशर्स। ठीक है, इफ़ यू आर हैविंग सम एक्सपीरियंस एंड गुड स्किल्स तो ये पैकेज आपका 15-20 लाख भी जा सकता है, दैट डिपेंड्स। और इसके बाद अगर आप इसमें एक्सपीरियंस और जो बाकी की न्यूरल नेटवर्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी अगर आप अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं, स्किल इन्हांसमेंट कर लेते हैं, देयर इज़ नो लिमिट। ये इंडिया का है। इफ़ यू टॉक अबाउट आउट ऑफ इंडिया, जिसमें आपके यूएस है और जो मेजर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर दे आर पेइंग इन डॉलर्स, और वहाँ पर जो स्टार्टिंग पैकेज है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 60 to 70K USD, और जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल का होता है दैट इज़ अराउंड 120 to 130K USD पर ईयर, दैट इज़ पर मंथ। okay, Yes. great. So one should like definitely go for data science If you are course. planning to see, अगर आपने कुछ नहीं किया है और यू आर प्लानिंग, जैसा मैंने कहा था, अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा हो तो ही आप डेटा साइंस में जा सकते हैं। अगेन आई वुड लाइक टू रिवाइज माय स्टेटमेंट, अगर अच्छा नहीं है लेकिन अगर आपके पास टाइम है एंड नाउ यू आर प्लानिंग कि आपको कुछ अच्छा करना है, तो क्या होता है, कोई भी बचपन से तो मैथमेटिक्स सीख के नहीं आता अपने माँ के पेट से, राइट? तो यहीं आके सीखते हैं। तो आपके पास टाइम है, आप सीख सकते हैं, स्पेंड टाइम इन एक्वायरिंग दीज स्किल्स, और आप थोड़ा सा टाइम दें अपने आप को, जल्दबाजी ना करें, एंड 6 months और 1 year और 2 years में आप ये सारी चीज़ें करके देन यू कैन प्लान योर करियर इन डेटा साइंस। Thank you so much for your valuable insights. So this will really help our viewers in choosing a career in data science. So it was really nice talking to you. And आपके साथ मेरी बात होती भी रहती है, लाइक जब मैं ट्रेनिंग नीड असेसमेंट करता हूँ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, उनकी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए फॉर आईटी, नॉन आईटी एंड सॉफ्ट स्किल, तो मेरी आपसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात होती रहती है, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी हो गई, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और क्लाउड कंप्यूटिंग के। So I hope this won't be our last discussion, and we will meet again to discuss some new topic on our next podcast. डेफिनेटली। We are also joined by Prashant Kumar, a project manager having vast experience in the field of banking, finance, and insurance. So he has successfully led various data science projects and is now going to share his valuable inputs in on pursuing the data science career. So we have Prashant with us. Hi Prashant, can you give us a brief intro about yourself? Hi, Ahmad. So sure. So let's just start with the introduction first. So my name is Prashant, and I have around 10 years of experience into data analytics, mostly into BFSI domain. So I have worked for bank, I have worked for NBFC, I have worked for life insurance, and currently I'm working for a health insurance company. It's an Indian company, and I'm working there as a data science lead. So I'm leading a team here. So that's Okay. what my Okay, thank you, Prashant, for introducing yourself. So, Prashant, we have some questions related to data science. So, let's start. Transitioning to a career in data science from an experienced professional's standpoint often presents challenges. So, what are the primary hurdles they might encounter, and what strategies can they employ to overcome these obstacles effectively? Okay, nice question. So, like, no, this is very frequently asked question. So, I would say, Yes. I mean, there are some prerequisites. So, people who want to get into data analytics domain, obviously, we assume that you at least you should have two prerequisites. The one is you should be good in mathematics, and the second thing is, I mean, you should have working knowledge of coding. So, but there is nothing to worry about. Like, for example, I have not studied coding during my academics, but still I'm surviving in the market from last 10 years and I'm doing good, right? So I would say that when I'm saying that should be good with numbers, I mean, precisely, I would say that you should be good in
statistics, especially probability theory, linear algebra, a little bit of, and then a little bit of calculus. But yes, if you don't know, I would say that you don't have to be a master. But if you don't know, I mean, start studying these things. And within, I think, if you are spending 2 to 3 hours a daily, I mean, within 2 to 3 months, I mean, you should have good understanding of these things, including coding and mathematical part. Then you can get into the course. You will be benefited more because if you don't have, I mean, if you are never done coding in your life, and once you will start studying the coding part, you will feel that maybe it won't make much sense to you. So I would say first, I mean, you should have good understanding of these things, then you should get into this data science career. Okay, thank you, Prashant, for your answer. We have another question, like what additional advice or recommendation would you offer to a seasoned professional considering a career shift into the field of data science? Okay. So see, what recently I have started noticing that people coming to this field, I mean, people coming out of their college and they're getting placed in a data science team, what they're assuming that they will start working directly on very advanced machine learning techniques or very advanced concepts like LLM or deep learning or AI kind of thing. But I mean, there is a saying in data science that 80% of data scientists' work is, preparing the data for the modeling part. So I would say anyone who is transitioning or just starting the career, focus more on data preparation part. Understand the data. Try to create some dashboards, nice dashboard, and the dashboard is not just a black and white graph and charts. It's more like a storytelling kind of thing. So once someone is referring to the dashboard, there should be a story behind the dashboard. So for the newcomers, that I would say that instead of just getting into the very advanced concept like LLM or deep learning, try to spend more and more time in data engineering part, because if you are not good with the data engineering part, it will be difficult for your survival in the market. Because I mean, 80% your job is to prepare the data for the modeling, and once we'll start doing it, maybe I mean, it will start making sense to you. So you will start getting the intuition that how to prepare the data for the modeling. I mean, on the same data set, you will see a lot of challenges. I mean, there are a lot of website where you can say with the same data set, one is getting 80% accuracy while other is getting 90% accuracy. Why it is happening? Because the one who, I mean, it's all about the data preparation part, how he has prepared the data. So I would say that to spend more time in data preparation and understanding of extracting the story, extracting the the trend from the data. It is more important than just getting into the advanced part. Okay, okay. Thank you so much, Prashant, for your prestigious time and guiding us to a path, like for the Miss professionals who can really like pursue a career in data science. Thank you so much for your time. Yeah. Thanks, Ahmed. Thanks. आई हैव ए रिक्वेस्ट टू आवर यूजर्स कि आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और आप नेक्स्ट पॉडकास्ट किस टेक्नोलॉजी, किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं, आप हमें वो भी कमेंट में बताइए, सो दैट वी कैन हैव अ डिटेल डिस्कशन ऑन दोज टॉपिक्स। आज हमने जो भी डिस्कशन किया है डेटा साइंस से रिलेटेड, तो हमारे डेटा साइंस के डिटेल्ड वीडियोस जो भी हैं कोर्स के, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर एजुकेशन नेस्ट चैनल। थैंक यू।